Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the previous lecture we have completed alcohols, and today we are going to start with the phenols. So let's restart. Okay, the main thing is phenol structure, and first of all the molecular formula of phenol is C6H5OH, and this is how you write the molecular formula, and this is the structure representation of phenol. Plus you can represent phenol like this also, the benzene ring containing OH group on itself. Fine. So this is the general representation of phenol. You can write it like this, or you can write it like phen भी लिखते हैं, phen के साथ आप OH इस तरह करके OH भी लगा देंगे तो वो भी फ़िनोल ही काउंट होता है. ये वाला भी रिप्रेजेंटेशन ठीक है, ये वाली रिप्रेजेंटेशन भी ठीक है, एंड दिस वन इज़ द मोस्ट कॉमनली रिप्रेजेंटेशन ये वाली है जी, जो ये वाली लास्ट में जहाँ येलो में अपना कर्सर लेके आ रही हूँ ये वाली है. ठीक है. सो दिस इज़ फ़िनोल. सो लेट्स वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िनोल, एंड इंट्रोडक्शन इन्वॉल्व who prepared it. When it was prepared in 1834. MP of phenol is 41 degrees Celsius, BP of phenol is 182 degrees Celsius. Other name is carbolic acid, and carbolic acid is basically common name of phenol is carbolic acid. This is the molecular formula, and its nature, as we can see, the name is carbolic acid, so its nature is acidic. It's acidic in nature. Okay. So first of all let's we start with the nomenclature of phenol, and nomenclature include अच्छा इसके कोई rules नहीं है as such कि किस तरह से इसकी नेमिंग की जाती है. जैसे हम IUPAC नेमिंग हमेशा पढ़ते हैं तो इसके वैसे रूल्स नहीं हैं. इसके हम लोग नाम इनके फिक्स्ड हैं, जो नाम देंगे. फॉर एग्जांपल अगर 1 OH लगा हुआ है, सो दिस इज़ नोन एज फिनोल. एंड इफ़ यू हैव, हाँ इसकी ये क्लासिफिकेशन ज़रूर है कि 1 few आर, जिस तरह हमारे पास एल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन थी, मोनोहाइड्रिक होते हैं, डाईहाइड्रिक होते हैं, पॉलीहाइड्रिक होते हैं, या ट्राईहाइड्रिक कहते हैं, उसी तरह इनकी भी क्लासिफिकेशन वही है. मोनोहाइड्रिक वो होगा जिसके अंदर एक सिंगल OH ग्रुप होगा, डाईहाइड्रिक वो होंगे जिसके अंदर 2 OH ग्रुप्स लगे होंगे, और ट्राईहाइड्रिक वो होंगे जिसमें ट्रिपल होंगे. तो ये ज़रूर होता है, बट इसके अलावा और कोई क्लासिफिकेशन ऐसा है नहीं. ओके. सो ये मैं आपको नाम बता रही हूँ कि अगर आपके पास मोनोहाइड्रिक हो तो उसके अंदर अगर आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है और उसके साथ OH लगा हुआ है तो इसको हम ऑर्थोक्रिसोल कहते हैं. ऑर्थोक्रिसोल कॉमन नेम है, और 2 मिथाइल फिनोल जो है ये इसका IUPAC नेम है. ठीक है. इसके बाद है हमारे पास, एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग अकॉर्डिंग द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप. सो इफ़ यू हैव ऑन ऑर्थो पोजीशन, सो इट इज़ ऑर्थो. इफ़ इट इज़ एट meta position, so it is a metacresol. So basically this group, if this group is involved or attached with the OH group, so that's why it is known as cresol. अगर ये अकेला लगा होगा तो it is not cresol. OH and methyl both groups should be attached together. Now this one, as you can see, this one is paracresol. So this is the name, इसको नाम दिया गया है कि ये paracresol है, and you can write it like 4-methyl phenol also, and this is the IUPAC name. Okay. Then we have dihydrate alcohols की example जो मैं आपको कह रही थी. So when you have a OH group and OH group at 1 and at 2, so this is the name is catechol. It's its common name. It is widely used. It is बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. It is asked in the paper a lot of times. So catechol का structure draw करने को आता है. So catechol when you have a hydroxy group present at first and second carbon. Okay. So और इसको आप benzene 1,2-diol भी कहते हैं IUPAC naming के accordingly. If you have OH group present at the third carbon, okay, it is shifted from second to the third carbon, so this is resorcinol नाम है इसका, और इसको आप benzene 1,3-diol भी कहते हैं. And I'll suggest कि don't forget to cram these names, catechol, resorcinol or cresol, because these names are important actually. ये पूछे जाते हैं. Now the next one is, it is hydroquinone or quinol. Hydroquinone or quinol means कि this part is shifted to the fourth carbon now, so it is hydroquinone or quinol, and you can also name it like benzene 1,4-diol. So this is the nomenclature. Next we have a few more structures. We have if we have nitro group present, so we will say orthonitrophenol or 2-nitrophenol. Both are correct. Melting point is 45 degrees Celsius. Basically phenol के अंदर जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो याद करने वाली हैं. इसके अंदर ऐसा को समझने वाला पार्ट नहीं है, बिकॉज दीज थिंग्स आर बेंजीन के ऊपर अगर आपका ऑर्थो पोजीशन और मेटा और पैरा पे लगे हुए, तो आई थिंक कि वो आप लोग उस चीज़ से फेमिलियर हो गए कि किस तरह से करना है. बाकी ये है कि नाम इनके देख लें. मेटा नाइट्रोफिनोल है, स्ट्रक्चर आ सकता है, और 3 नाइट्रोफिनोल है, और पैरा नाइट्रोफिनोल है, एंड 4 नाइट्रोफिनोल है. दे ऑल आर करेक्ट. ठीक है. इनके कोई कॉमन नेम्स नहीं है, इनको इसी तरह से नाम देंगे. नेक्स्ट वी हैव 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल. दिस इज़ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल.
sorry, this one is 2,4,6 trinitrophenol and the common name is picric acid. पिक्रिक एसिड, और इसको आप 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल भी कहेंगे. आप यहीं पर लिख लें, मैं लिख देती हूँ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल. ठीक है. इट इज़ द IUPAC नेम एंड द कॉमन नेम इज़ पिक्रिक एसिड फॉर दिस प्रोडक्ट. नेक्स्ट वी हैव 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल एज यू कैन सी दिस वन. और लास्ट में आपके पास आ रहा है इस पेज पे 4-नाइट्रोफिनोल. एंड 4-नाइट्रो क्यों है? बिकॉज वी हैव स्टार्टेड नेमिंग फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन. दिस इज़ आर फर्स्ट. इसको हमने फर्स्ट कंसीडर किया. दिस इज़ सेकंड, थर्ड एंड दिस वन इज़ 4. तो दिस वन इज़ 4-नाइट्रोफिनोल. ओके. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल एंड दिस इज़ स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल इन विच बेंजीन रिंग. वी हैव अ बेंजीन रिंग एंड sorry, we have a okay, so this one is benzene ring and benzene ring has OH group attached with itself and these are the two lone pairs. I think we have discussed this structure previously समवेयर डिस्कस किया है हमने. और यहाँ पर जो है द बॉन्ड एंगल इज़ 109.5 डिग्री एंड दिस इज़ द बेंजीन रिंग. और बेंजीन रिंग के अंदर का जो काम है वो सारा वैसे ही होगा जो हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था. स्ट्रक्चर ऐसे ये वाला आता नहीं है ड्रॉ करने को, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज हम लोग यहाँ पर शेयर कर रहे हैं. नाउ कम्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल. फिनोल इज़ अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड डेलिक्यूसेंट्स. इसका मतलब अच्छा, इसकी जो एक मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसकी स्मेल बड़ी पिक्यूलियर होती है, बड़ी बहुत बुरी सी होती है. पंजेंट स्मेल पंजेंट से भी ज़्यादा कोई बड़ी चुभने वाली स्मेल होती है इसकी. ठीक है. अच्छा, इसके आगे इस वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड चेंजेस इनटू अ लिक्विड फॉर्म. नॉर्मली होता क्या है, ये ब्राउन कलर का होता सॉलिड है, बट हम लोग अक्सर लैब में भी, हमारी जब लैब फिजिकल लैब्स स्टार्ट होती हैं तो उस वक्त मैं आपको बताऊँगी, दिखा दूँगी अगर हमारा कोई काम होता है इससे, कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है और इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, इसलिए वो बॉटल हम लोग ज़्यादा खोलते नहीं हैं. इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 41 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 182 डिग्री सेल्सियस. It's sparingly soluble in water, sparingly because organic solvent है, forming pink solution at room temperature but completely soluble at this in the consolidate temperature for water phenol system that we have studied in the first year. उसके अंदर हम लोगों ने सॉल्यूशंस की 3 टाइप्स पढ़ी थी, जिसके अंदर पार्शियल, टोटल सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे, तो ये वो वाली चीज़ डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव बिकॉज वी हैव सीन के दिस इज़ एसिडिक, इट्स कॉमन नेम इज़ कार्बोलिक एसिड, तो इसकी नेचर एसिडिक होती है. सो कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल्स एंड कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. 3 चीज़ों का कंपैरिजन बेसिकली कर रहे हैं. कौन कौन सी? फिनोल, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो कंपैरिजन पहले इन दोनों का करेंगे और फिर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं. सो देखते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक है. एसिडिटी ऑफ फिनोल की बात करें, फिनोल आर फेयरली एसिडिक कंपाउंड्स एंड इन दिस रिस्पेक्ट डिफर मार्केडली फ्रॉम अल्कोहल्स विच आर इवन मोर वीकली एसिडिक दैन वाटर. सो ये आपके पास, ये आपने चार्ट जो है इसको देख लेना है. कार्बोलिक एसिड आर मोर एसिडिक, देन वी हैव फिनोल, देन वी हैव वाटर एंड अल्कोहल्स आर लीस्ट एसिडिक नेचर. ठीक है. एक्वस हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट्स फिनोल इनटू देयर सॉल्ट्स एंड दिस इज़ फिनोल का. अच्छा, ये एक आर, ये जो AR लिखा हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो शोइंग द फिनाइल, जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना बेंजीन का, एक हाइड्रोजन मिसिंग के साथ, इसको AR से भी लिख सकते हैं. ये वाला, ये चीज़ जो है इसको हम AR से अगर ऊपर कुछ लगाते हैं तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये AR कंसीडर होगी. ठीक है. तो कह रहे हैं कि इट इज़ एसिडिक इन नेचर एंड इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, बट अगर हम इनके सॉल्ट्स बना देते हैं तो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू, दे कैन बी सॉल्युबल हैं. और यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि ये आपके पास ये आपके पास क्या होगा कि अगर ये H जो है, अच्छा एसिडिक चीज़ क्या होगी, एचाइंस रिलीज़ करती है. ये इसके एसिडिक एसिड्स की डेफिनेशन होती है हमारे पास. सो एसिड्स जब इसमें से एचाइंस रिलीज़ हो जाएंगे, एज यू कैन सी यहाँ से, तो व्हाट्स रिमेनिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर सिर्फ O रह जाएगा. एंड O ऐसा थोड़ी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को ईजिली जान देगा, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा. तो दैट्स वाई ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ शो हो रहा है. एंड द नेम इज़ फिनॉक्साइड सॉल्ट एंड दिस इज़ सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है.
उसके बाद कह रहे हैं कि दिस वॉज द एसिडिटी ऑफ फिनोल। नाउ एसिडिटी, फैक्टर ऑफ एसिडिटी की बात करेंगे कि ईज़ ऑफ डोनेशन क्यों होता है, ईज़ ऑफ डोनेशन ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज ऑब्वियसली वो जो है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो बहुत ज़्यादा ईजिली उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेता है, किसका, आपके हाइड्रोजन का, तो वो प्रोटॉन बन जाता है, वो प्रोटॉन निकल सकता है। और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन क्या है, द हायर द स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन द हायर द एसिडिटी एंड वाइस वर्सा। व्हाट डज इट मीन कि आपका जो एनाइन है, जो ओ नेगेटिव है, वो बहुत स्टेबल होता है। नॉर्मली स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है, दैट्स वाई। उसके बाद कह रहे हैं कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल्स एंड अल्कोहल्स की बात करेंगे। थोड़ा सा इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है उसको देख लेंगे, होता क्या है एक्चुअली। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके फिर आपको बता देती हूँ। लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट। एक्चुअली यू हैव ऑक्सीजन, एज यू कैन सी दिस ऑक्सीजन हैज़ अ लोन पेयर, और ये हमें नज़र ही आ रहा है। होता क्या है कि ये जो लोन पेयर होता है ना, अब ये कंटिन्यूसली इसके अंदर कह लें कि शिफ्टिंग होती रहती है इन इलेक्ट्रॉन पेयर की, यहाँ बॉन्ड बन रहा होता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को शो कर रहा है। तो जब हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट होंगे, अच्छा ये पाई सिस्टम कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, तो वही वाला सारा यहाँ पे भी कुछ चल रहा है, और यहाँ से ये इस साइड पर आएगा। तो आपके पास क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हुए, आपके पास, एक मिनट में बहुत ज़्यादा लिख दिए यहाँ पे, मैं यहाँ पर बता देती हूँ। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो आपके पास ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर तो पहले 2 लोन पेयर थे ना, अब एक रह गया, तो अब यहाँ ज़ाहिर है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। होगा क्या, देन दिस पाई सिस्टम विल ट्राई टू हेल्प इट आउट, ठीक है जी। अब ये पाई सिस्टम जो है ये कहेगा कि भाई यहाँ पर तो आपके बॉन्ड्स जो हैं, यहाँ पर भी नहीं रहा, यहाँ पे भी नहीं रहा, तो मैं आता हूँ, और ये यहाँ पर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। जब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा पाई सिस्टम आपका, तो देखिए ये वाला जो आपका ऑक्सीजन है, इसके पास क्या क्या आ गया। ऑलरेडी यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर ये वाला भी जो शिफ्टिंग हुई तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, मैक्सिमम हो गए। और फिर ये है कि ये कंटिन्यूसली चलती रहती है चीज़, होता रहा। और जब आखिर में आप देखेंगे तो हुआ क्या आपके पास, कि दोबारा से आपके पास वही बॉन्ड जो है शिफ्टिंग हुई है कंटिन्यूसली। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, ये यहाँ से यहाँ गया, और ये शिफ्टिंग करके, और चीज़ वही बन रही है, लेकिन यह है कि रोटेशनल बेसिस के ऊपर हो रहा है ये काम, ठीक है। जस्ट इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हम लोगों ने दिखानी है, हर ऊपर से लेके ऑक्सीजन से लेके दोबारा से रीफॉर्म होने तक 5 स्टेप्स हैं। सो ये भी पढ़ लेते हैं। हैंस ऑक्सीजन एटम गेट पॉजिटिव चार्ज and attracts the pair of electron or OH towards itself, therefore it becomes easier to donate hydrogen atom as proton, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस वजह से आपके पास हाइड्रोजन एटम जो है एज प्रोटॉन निकल सकता है यहाँ पर। उसके बाद आ रहा है कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल्स एंड अल्कोहल्स की, आगे कंटिन्यू इसको कर रहे हैं। अब अल्कोहल की बात करेंगे। अल्कोहल इतने एसिडिक होते क्यों नहीं है। अब देखिए हो क्या रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर भी मौजूद है, ये देखें इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है जी, हो गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जब यहाँ आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब वो पाई सिस्टम तो आपके पास हो गया ना, पाई डबल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा हो गए। अब वो यहाँ से शिफ्टिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये वाला बॉन्ड, अच्छा पॉजिटिव चार्ज लगाना नहीं भूलिएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। अब यहाँ पर नेगेटिव क्यों आ गया, बिकॉज पाई सिस्टम आ चुका है यहाँ पर। अच्छा पाई सिस्टम जब आपके पास आएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से यहाँ से शिफ्ट होकर इस साइड आए तो उसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी सारी शिफ्टिंग की बात करें तो प्रॉब्लम पता है कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है आपको जो ये वाली चीज़ आ रही है ना यहाँ पर। ऑल्दो हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास उसकी बात कर रहे हैं फिनोल्स के अंदर, तो ये सारा का सारा सिस्टम यहाँ तक जो है, तो इसके अंदर यही होता रहता है कि आपके पास, क्योंकि फ़ीन ऑक्साइड इसको कहते हैं, बेसिकली ये फ़ीन ऑक्साइड आयन बनता है किसके केस में, फ़िनोल के केस में, सही है। सो ये फ़ीन ऑक्साइड जो होता है ये इसको स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा होता है किसको, आपके फ़िनोल को, ठीक है। सो ये आप जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका हम बना रहे हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर यही है, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास बन रहे हैं ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके पास दे आर फॉर्मिंग इन द फिनोल, बट इन केस ऑफ
अल्कोहल इट इज़ नॉट, वहाँ पे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते नहीं, बिकॉज यू डोंट हैव दिस काइंड ऑफ पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर और रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस आपके पास फिक्स्ड है फॉर बेंजीन स्ट्रक्चर, ठीक है. सो दैट्स वाई हम लोग इसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिस्कस करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली करते हैं. ओके, अगेन दिस इज़ अ कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, एंड दिस इज़ अगेन दे आर शोइंग the phenoxide structure, that this is how phenoxide structure is forming. You just need to keep converting or keep moving this pi bond system from here from there. और ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके वाले यही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको आपने मूव करते हुए दिखाना है हर जगह से, और एक वक्त आएगा कि ये सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे और आपका जो H है ना वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा. रिमूव इन द सेंस कि वही होगा कि आपके पास H निकल जाएगा, एंड दिस इज़ शोइंग एसिडिटी ऑफ फिनोल, ठीक है. नेक्स्ट वी आर कंपेयरिंग द एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इसको इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया, बस सिंपल ये बता रहे हैं कि एज यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स, मेन थिंग इज स्ट्रक्चर. दिस इज़ योर कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़ रिमूविंग द H ions. Fine. So they are saying that this is relatively stable. They both are interconvertible, they both are converting into each other, and they both are relatively stable. But when it comes to अगर हम इनके उसमें जाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा नहीं होगा, तो कहते हैं कि रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज़ द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड दिस इज़ द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर ऑफ एन कार्बोक्सिलिक आइंस. सो कहने के व्हेन वी आर कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम, एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का केस है और एक आपके पास सिंपल आयन का केस है, तो कहने कि इस केस के अंदर जब हम बात करते हैं ना, तो ये वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है, दैट्स वाई इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू दैट पार्ट. अच्छा, ये सारे एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं, बट यू हैव टू कन्वर्ट दिस टू इनटू दिस, और ये सारे एक दूसरे के साथ हैं, और सबसे ज़्यादा आपके पास जो अनस्टेबल है वो यही वाला है, ठीक है. इसके अब बस इतना ही पार्ट डिस्कस किया गया, इसको ज़्यादा उसके अंदर डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया. नाउ कम्स द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, रिएक्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन विद सल्फोनिक एसिड विद NaOH. अच्छा, ये सारी आपको मिलती जुलती लगेंगी, एक जैसी लगेंगी, तो प्रैक्टिस की इसके अंदर है कि प्रैक्टिस करनी है आपने. बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, डाउन्स मेथड है. अच्छा, दिस नेम इज़ इंपॉर्टेंट, डाउन्स मेथड है, ये हमने करना है. एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन है, एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम अराइल डायजोनियम सॉल्ट्स है. So let's we start. First of all, we have a benzene sulfonic acid. The important thing is the benzene sulfonic acid structure. This is a benzene sulfonic acid structure. It is reacting with sodium hydroxide, and what is happening here, this H ion is going to be removed from here, and this sodium is going to get replaced with this sodium. So as you can see, this positive have replaced each other. Now again, this is going to be this sodium benzene sulfonate is going to react with sodium hydroxide further. एंड अगेन नाउ व्हाट विल हैपन कि यहाँ से आपके पास ये जो SO यहाँ पर ये जो SO3 है, यहाँ से आपके पास सिर्फ एक O रह जाएगा, बाकी इस SO2 ग्रुप जो है ये रिमूव होगा, एंड यू विल हैव अ सोडियम फिनॉक्साइड. दिस स्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट विद द HCl. एक्चुअली इट इज़ नॉट मैंशनड हेयर, बट HCl होगा, एंड HCl इज़ प्रोवाइडिंग H ions. सो फर्दर ऑन होगा क्या, लेट मी राइट इट हेयर. HCl के साथ रिएक्शन है, तो दिस Na इज़ गोइंग टू कंबाइन with Cl, and this H is going to combine with OH. So this is how phenol will form. This is from benzene sulfonic acid. ठीक है. So this is the first reaction of preparation of phenol. Next we have a Downs method, and Downs method we have a base hydrolysis of chlorobenzene. It is again the same procedure. This chlorine is going to react with the sodium hydroxide. Firstly you will have a sodium phenoxide, and further on it is going to react with HCl, and again the reaction will be same. NaCl बन जाएगा and OH बन जाएगा. This is not shown here, but you can write it like by yourself also, कि यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे actually reaction ये होता है, ठीक है. So this is from chlorobenzene, Downs method कहा जाता है. Next we have acid oxidation of cumene. The main thing is the cumene structure. It can appear in your exam for the structure, just for structure वो कह सकते हैं कि cumene का structure बनाइए. So isopropyl benzene होती है जो, उसको हम क्यूमीन भी कहते हैं. इट रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होती है जनाब, और हाइड्रोजन्स विल गेट रिमूव एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विल हैपन हेयर. सो हेयर वी हैव अ 2 ऑक्सीजन्स एडेड, एज वी आर एडिंग हेयर 2 ऑक्सीजन. सो दीज 2 ऑक्सीजन्स आर गोइंग टू बी एडेड हेयर. एंड उसके बाद क्या होता है कि एसिड कैटालाइज रीअरेंजमेंट होती है. एसिड कैटालाइज रीअरेंजमेंट होती है, तो यहाँ से आपके पास ये जो है ना, ये CH3COOH, ये देखिए, ये CH3COH3 ये चीज़ CH3
3 ये चीज़, ये आपके पास यहाँ से रिमूव हो जाएगी और सिर्फ OH ग्रुप जो है ना ये लगा रह जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास हाइड्रो पेरोक्साइड क्यूमीन जो मेन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है और ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट है आफ्टर ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम एराइल डाइजोनियम सॉल्ट। अगेन अराइल डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर केस में क्या होता है कि दिस हाइड्रोजन इज़ गोइंग टू बी रिप्लेस विद द नाइट्रोजन। ये आपके पास इंटरमीडिएट है, अराइल डाइजोनियम सॉल्ट है। इसने फर्दर ऑन रिएक्ट करना है आपके पास इन कंडीशंस के साथ, क्लोराइड है, वाटर है, नाइट्रोजन है, HCl है और आपके पास, अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ मेंशन नहीं है एक्स्ट्रा तो मैं नहीं जा रही हूँ उसकी डिटेल में, बस सिंपल ये है कि अराइल डाइजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर जो है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है तो आपके पास ये चीज़ें जो हैं ये रिमूव होंगी और आपके पास फिनोल जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद आपके पास रिएक्शन ऑफ फिनोल आ रहे हैं। 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं, जल्दी से इनको देख लेते हैं, आसान से होते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होते। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, एज़ यू नो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये जो फिनोलिक ग्रुप होता है ना ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो होगा क्या कि जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आकर लगेगा या ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे और आपका एच आइन, जाहिर है एच आइन क्यों रिमूव हो रहा है यहाँ पर, ये वाला एच आइन, अच्छा ये याद रखिएगा ये एच आइन रिमूव नहीं हो रहा, आपके पास फार्मूला होता है C6H5OH, ठीक है। सो ये जो H5 है ना इनमें से एक H रिमूव होगा और उसकी जगह आपके पास यानी कि फार्मूला बन जाएगा C6H4E, ठीक है, C6H4E बन जाएगा, E के साथ OH है, आगे OH भी लगा होगा ऊपर क्योंकि हमारे पास OH लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला होगा इसका। अच्छा इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम मेटल, ये देख लेते हैं। अच्छा ये रिएक्शन वही है जो हमने रिवर्ट हो गया सोडियम के साथ जब आप क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। इसी तरह आप फिनोल के साथ जब सोडियम को रिएक्ट करेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। इंटर कन्वर्टेबल रिएक्शन होते हैं ये और प्लस हाइड्रोजन गैस जो है ये आपके पास रिलीज़ होगी। सोडियम फिनॉक्साइड कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोल देख लेते हैं क्या होता है। कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोल के अंदर याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिमूव होता है। उसके बाद कहते हैं रिएक्शन विद सोडियम मेटल कोल्ब्स श्मिट रिएक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका सोडियम फिनॉक्साइड फर्दर ऑन रिएक्ट करता है विद कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपके पास चीज़ें बनती हैं। कौन कौन सी चीज़ें कि ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड है। सोडियम फिनॉक्साइड ने इन चीज़ों की इन कंडीशंस की प्रेजेंस में रिएक्शन करना है तो क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर तो चलें ONA की जगह आपके पास OH आएगा ही, साथ में इस जगह पर आपके पास COONA सोडियम इसको कहेंगे हम मीथेनोएट है एक्चुअली वो चीज़, लेकिन इसको कॉमनली या नाम दे रहे हैं सोडियम सैलिसिलिकेट, वो आपके पास लग जाएगा। और फर्दर ऑन इसके अंदर जब हम एच आइन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये सैलिसिलिक एसिड कहते हैं इसको, ये बनेगा, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है कि एक तरफ आपके पास OH ग्रुप होता है और एक तरफ आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है। वेयर एज एट हायर टेम्परेचर अप टू 240 डिग्री सेल्सियस ऑर्थो प्रोडक्ट आइसोमराइज टू पैरा आइसोमर्स, और फर्दर ऑन ये कह रहे हैं कि पैरा भी बनता है लेकिन हम लोग फ़िलहाल यहीं पर वो कहते हैं रिस्ट्रिक्ट रखते हैं। उसके बाद कह रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल क्या होता है, फिनोल्स आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस थ्रू सेवरल स्टेप इन इवेंचुअली डिस्ट्रॉइंग द रिंग। उसके बाद वी हैव अ डिफरेंस बिटवीन एल्कोहल्स एंड फिनोल एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट, लेट मी रीड इट फॉर यू। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ अटैच टू एन एल्काइल ग्रुप। मेन डिफरेंस आपने जब लिखना है तो इनके ये ROH और इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दें बेंजीन रिंग के ऊपर कि क्या आपके पास ऊपर OH ग्रुप होता है। हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, इट इज़ अ हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, द कंपाउंड इन विच वन हाइड्रोजन ऑफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप, द कंपाउंड इन विच एन हाइड्रोजन ऑफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय एन अराइल ग्रुप। जनरल फार्मूला लिखें ROH C6H5OH। लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड, कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिक्विसेंट लिक्विड। MPs डिफरेंट हैं, द करेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल होती है इनकी एज आई सेड के ये लेकिन जो आपका फिनोल होता है इनकी बड़ी बुरी सी स्मेल होती है। इन्होंने फिनोलिक ऑर्डर लिखा है लेकिन स्मेल अच्छी नहीं होती। दे आर नॉट एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर, यू कैन सी PK इसकी कम है। रीडली सोल्यूबल, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, इट इज़ स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। एल्कोहल रिएक्ट इन 2 ways, रिएक्शन इन CO बॉन्ड्स। आपको याद होगा हमने पीछे पढ़ा था कि आपका जो ROH का बॉन्ड होता है ना वो यूं भी टूटता है और ROH का बॉन्ड यूं भी टूटता है, ठीक है, 2 तरह से टूटता है। जबकि कह रहे हैं फिनोल आयन हैव अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बट अल्कोहल डू नॉट हैव अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो इसकी उन्होंने सिंपल वो ये बात बता दी है। सो दैट्स ऑल अबाउट फिनोल्स।
इसकी प्रैक्टिस करें, इसको देखें, रिएक्शंस लिखिए। छोटा सा टॉपिक है, रिएक्शंस भी सिंपल से ही हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे।